العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا وهادينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا شيء أحصيناه في إمام مبين. درود يا محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران ایمانی محبان اہل بیت النبی ماتم داران سرکار سید الشہداء، اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کے بہت مشہور آیت کو فرمانے کا نام قرار دیا، جس میں پروردگار اعظم ارشاد فرما رہا ہے میں نے ہر چیز کا حصہ امام مبین میں کر دیا ہے، جو کچھ ہے وہ سب امام مبین کے اندر ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں کائنات کا ہر خوش خطر ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ فرمایا تم اپنے عقلوں کے ذریعے اس کو نہیں حاصل کر سکتے، اس کے لیے تم کو کسی عالمی کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ جو عالمی کتاب ہے اس کے صفات بیان کی ہے پروردگار عالم نے اسی کتاب میں، جس کو امت نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے اپنایا تھا۔ اور عزیزان گرامی اس وقت کی مجلس میں میرا دل کر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کا معاملہ۔ صبح کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام کے لیے جیسی ضرورت ہوئی اہل بیت نے وہ فیصلہ کیا، اور دین کو اس کنڈیشن میں پہنچا دیا گیا 11 ہجری کے بعد 28 صفر سن 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد سے دین اسلام کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ ہوا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی اور صبح کی 4 رکعت پڑھا دی، اور تعجب یہ نہیں اور کس حالت میں کہ جب اس کو ہٹایا تو وہ نشے کی حالت میں تھا۔ جو ابھی صبح کا معاملہ یہ تھا کہ حیدرآباد میں یا کہاں، اب ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، میں نے سنا ہے کہ جو بھی نقل صاحب کا ذکر ہو رہا تھا کہ اس میں کانفرنس ہو رہی تھی امام حسین کے حوالے سے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اچھا بھائی، کربلا نہ ہوتی حسین تو کیا ہوتا۔ تو اس میں تمام مذاہب کے علماء کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس میں شیعوں کی نمائندگی کرنے کے لیے مولانا نقل کو بلایا تھا۔ تو جب کانفرنس شروع ہوئی تو سب نے تقریر کر لی، جو معاملہ تھا سب نے تقریر کر لی، جس کو جو ٹائم تھا اس نے جتنا بولنا تھا بول لیا۔ اب نماز کا وقت آ گیا اور صرف 5 منٹ بچے تھے، تو جو ناظم تھا جو بلا رہا تھا اعلان سر، اس نے مولانا نقل کو مصاحب، ایک تو شیعہ ہونے کے ناطے سارے تھے اکیلے ہی اس میں، تو ان سے کہا کہ یہ بتائیے 5 منٹ کا وقت ہے، آپ اگر اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، اور بلایا بھی تھا، اور بلانے کے بعد یہ حالت اور سب کی بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریر، تو آیت اللہ نقل سے کہا کہ یہ بتائیے کہ 5 منٹ کا وقت ہے، آپ اس میں اگر اپنی بات کہہ سکتے ہوں تو کہہ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ 5 منٹ تو بہت زیادہ ہے، ہم کو اپنی بات کہنے کے لیے صرف 1 منٹ چاہیے۔ صرف 1 منٹ کی ضرورت ہے، 5 منٹ تو بہت ہے، 4 منٹ تمہارے بچے رہ جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ یہ کھڑے ہو بسم اللہ کہنے کے بعد جتنی تقریریں ہوئی ہیں ساری چیزیں صحیح ہیں، مگر کربلا نہ ہوتی تو آپ یاد رکھیے کہ جمعہ کی نماز بدھ کو ہوتی ہے اور سب پڑھ لیتے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو
तो जुमे की नमाज बुध को होती, जुमे को नहीं होती। वो पूरी तकरीर और पूरा सेमिनार और जो जलसा था वो वहीं पे ख़त्म हो गया एक जुमले के ऊपर, कि इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है। और ये हकीकत है तारीख की, सब कुछ एक जुमले में पूरी तारीख को समेट के कह दिया कि ये देख लो, अगर करबला न होती तो इस्लाम इस नतीजे पे पहुंच चुका होगा। और करबला के बाद अज़ीज़ान ग्रामी वो वक्त था कि मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया कि उसने जाके मस्जिद जामे कूफा के अंदर, कूफे में वलीद ने 2 की 4 सुबह की पढ़ा दी नशे की हालत में। और ये मज़लूम करबला की शहादत के तुफ़ैल आज इतने, कोई चाहे जिस फिरके का आदमी हो, इतनी तो बेदारी है कि मेहराब नहीं मस्जिद के अंदर शराबी नहीं दाखिल हो सकता है। तो आप ये कम शहादत का समझ रहे हैं कि दीन इस्लाम इमाम हुसैन की शहादत का ये असर आज है कि शराबी मस्जिद के दरवाजे नहीं आ सकता है, मेहराब में जाने की छोड़ दीजिए। और वो वक्त था जब कि तीसरी खिलाफत थी, और तीसरी खिलाफत ये रसूल अल्लाह की वफात से 20 साल के बाद की बात है, कि 18-20 साल के, कहीं ज़्यादा 10-20 200-400 साल की पुरानी बात नहीं थी। उलमा का बड़ा किरदार है, क्योंकि कर दो कि एक आलिम दीन गुजरे हैं मुकद्दस अरबेली, मुकद्दस अरबेली, अरबेल के रहने वाले थे। और इनका लक़ब मुकद्दस पड़ गया, नाम अहमद था, नाम इनका अहमद था, लक़ब मोहब्बत शाह। सो रहे हैं दूर हर चीज़ की उम्र का तकाजा होता है। जब हमारे इसमें से कभी भी जब हम इस उम्र में पहुँचेंगे तो हम भी उम्रते रहेंगे, तो चलते ही रहेगा। अज़ीज़ान ग्रामी, तो नाम अहमद था, वो गौर से सुन लीजिए, और बुजुर्गों से कोई बात नहीं, मगर बच्चों से कह ध्यान से सुन लीजिए। तो इनके कैसे आलिम दीन, क्योंकि इमाम ने फरमाया जो मुझसे मुलाकात का दावा करे झूठा है। इमाम ज़मान इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने इमाम से मुलाकात की, वो झूठ बोलता है, क्योंकि कोई मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता, जिससे मैं चाहूँगा मुलाकात कर लूँगा। और ये पर्दा तो मासियत का हमारी नज़रों पे, इमाम थोड़ी पर्दे में है। ये सिर्फ एक है, मशहूर है कि इमाम पर्दे में है, पर्दा हमारी नज़रों पे पड़ा है, हम इमाम को नहीं दे सकते हैं। और अगर इमाम पर्दे में चले जाए तो कायनात का निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, कायनात हो सकता है। सैयदुश्शुहदा की रवायतें, बहुत सी रवायतें, तो एक तो नहीं मासूम है कि जब मजलिस सैयदुश्शुहदा होती तब इमाम तशरीफ लाते हैं और हर हज में आते हैं, तो पर्दा हम नहीं देख सकते हैं ना, बाकी इमाम तो हमको देख रहे हैं। और जिस दिन इस का एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, उस दिन मालूम नहीं हम कितने गुनाहों से बच जाएंगे कि हमारा वारिस मुझे देख रहा है। वो मुकद्दस अरबेली, तो नाम इनका अहमद था और लक़ब मुकद्दस पड़ गया। और ये उन आलिमों में से हैं जिनसे इमाम ज़माना मुलाकात किया करते थे, अक्सर जब चाहते थे इमाम से मुलाकात कर लेते थे। जब इनका दिल चाहा, जब इमाम को याद किया तो इमाम से इनकी मुलाकात हो गई। ये ऐसे आलिम दीन, अब आप समझिए तो ये क्यों ऐसे हो गए। इनके वालिद का नाम था अबू ज़र, और बात आसानी से आप आज़ाद समझ जाएंगे, मगर याद बच्चों से खास तौर से तो जो भी हैं इसको गौर से सुन लो, हमेशा जिंदगी भर याद रखना, नस्लें सुधर जाएंगी। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुकद्दस अरबेली, इनके वालिद का नाम था अहमद अबू ज़र। और हम अरबेल एक मकाम है, वहीं पर रहते थे। इनकी खेती थी बब्बू चाप, खेती में बेचारे एक दिन पानी लगा रहे थे, तो अब तो भाई पाइप है, ले गए इंजन बांधा और पाइप बांधा और डायरेक्ट चला दिया। और अपने बढ़ाव वाला ज़माना तो हम सब ने तो देखा ही है। अब ये लोग तो बनाए, देख उसको पता ही ना होगा नई नस्ल को, मगर हम लोगों ने देखा है, बनाया भी है, किया भी है। तो वही नहर से अब इतनी, और जाहिर सी बात है यहाँ तो इतनी फरावानी है। अब 20 साल पहले 30 साल पहले कितने घर खेत में बोरिंग थी, या तो हमने वो भी देखा राहट से पानी निकालते हुए, और एक बोरिंग हो गई तो उससे पता चला इलाका भर आदमी परेशान हो रहा है। और उस वक्त नहर से पानी काट के, नहरें जहाँ थी वो अब भी बहुत इलाके में है,
तो नहर से पानी लेके जाते थे तो खेत की आबियारी करते सींचते थे, तो यही बनाए हुए नाली पानी अपने खेत में भर रहे थे। और होता है अक्सर इसमें ऐसा है, सभी किसान हैं, सभी तकरीबन थोड़ा, चाहे 2 बीघे हो, चाहे 10 बीघे हो, चाहे 50 बीघे हो, सबके पास है ऐसा मामला। और वो मोहब्बत वगैरह छोड़ के चले गए, मगर किसी ज़माने में ये भी जाते थे। ऐसा नहीं है कि आज बहरहाल अब इन्होंने दे दिया, भाई हम ही अपनी दे रहे हैं, दूसरे को क्या करें, नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसलिए दूसरे के। अब ये बेचारे खेत पे काम कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे, समझिए। और सुबह अब आदमी जब काम होता है तो आदमी जल्दी जल्दी सुबह निकलता है कि चले सुबह काम शुरू कर दे, जिसमें टाइम रहते रहते काम भी खत्म हो जाए। अब वो सुबह निकल गए बगैर, अब समझिए चाय नाश्ता किए हुए। अब इंतज़ार ये था कि अभी घर से खाना वाना आएगा। ये मुकद्दस हरबेली के वालिद साहब, जिनका नाम अबूजर था, अब ये उस जगह पे अपने खेत में पहुंचे, नाली वाली बना के अपने बेलचा फावड़ा कुदाल जो भी था उससे, और पानी काटा और पानी चलने लगा। अब ये बैठे हुए पानी देख रहे, पानी चल रहा है। अब सुबह को 8-7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, घर से कोई आए नहीं कि कोई खाना वाना आता। जिनके भूख लगी थी कि खाना वाना, जाहिर बात है हम ही लोग जल्दी निकल गए, तो कोई लेके पानी वानी पहुंच गया, भैया पानी तो पी ही लो, चाहे चाय नहीं पी के गए तो चाय खेत पहुंच गई। किसी आदमी का किसी बच्चे का भेज दिया। अब बाप खेत में है तो बेटा घर पे है, तो अम्मा कहेंगी भैया ले जाके जरा अब्बा को ये पहुंचा दो। अब ये बेचारे उसमें बैठे हुए, कोई हाथ होगी वो कुछ उठा खेत देख रहे हुए, घर की जरूरत रास्ते में कुछ जा रहा होगा। उसी असना में इन्होंने देखा कि उसी नाली में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। उसी नाली में एक सेब बहता हुआ चला रहा है। भूखे तो थे ही, फावड़ा चलाने के बाद, मेहनत करने के बाद आदमी भूख तो लगती है। इन्होंने पानी को वहाँ बही रहा था, नाली काटे थे नहर से, दरिया से, सेब को लिया और लेने के बाद देखा खा, जब भूख लग रही थी तो कहा कि जब तक घर से खाना आएगा, पानी आनी पहुँचेगा, तब तक किसी काम चलाएगा। इन्होंने खा लिया। अब बताइए शरण जायज़ था या नाजायज़ था? किसी खेत से चोरी करके तो वो पूछा, वो लाए नहीं थे, नाली में बह के आ रहा था, उसको खा लिया। जब खा लिया, शरण इसमें कोई कबाहत भी नहीं है कि भाई वो नाली बह के आ रहा था, उसमें तहकीक की कोई जरूरत थी नहीं कि उसको पता लगा है कि किसका है क्या है। और ये खा के जब खा लिए, तब इन्होंने याद सोचा, एक दूर पड़े मोहम्मद शरण कोई कबाहत तो थी नहीं कि उसको खा लिया है तो ये शरण नाजायज है, ये हम। मगर इन्होंने एक बात सोची, जब खा लिया, जब पेट में पहुंच गया, अब इनको ख्याल आया कि यार सेब तो मैंने खा लिया, अब ये मालूम नहीं किसकी बात का सेब आया हो, और जिसकी बात का सेब है मालूम नहीं वो मुझे इजाज़त दे कि न दे। मैंने बगैर उसकी इजाज़त के ये सेब खा लिया, और इस सेब खाने की वजह से मालूम नहीं अल्लाह मुझे कितने बड़े अज़ाब में मुब्तला कर दिया। मालूम नहीं बे इजाज़त मैंने सेब को खा लिया, किसी के बात से पूछा था, वह बहरात मेरे खेत की तरफ नाली में आ रहा था, मगर था तो ये किसी दूसरे की मिल्कियत, मैंने उसको खा लिया। और जब खा लिया तो अल्लाह इसकी क्या सजा देगा मुझे? तो बेहतर यह है कि चलो पता लगाएं इसका ये है कितना, कहाँ भूख लगी थी। एक सेब नाली में वही बहता हुआ बनाए मारा तो उसको खाया। अब खाने के बाद जब जवाब अबूजर को होश आया कि ये हुआ तो गलत मुझसे, ये सेब मैंने गलत खा लिया, खाना ना चाहिए था, क्योंकि ये दूसरे की मिल्कियत है। अब ये उस रास्ते पे चले तो देखा कि एक बाग है, वो लगी थी, तो देखा कि हाँ यही सेब गिरा होगा। अब वो गाँव ही के आदमी थे जिनकी बात थी, जैसे अब सुबह में बात लगी है, अब जो हम लोग किसी बच्चे आम तोड़ते हो होश में आ जाए, जहाँ मांगे से मिल जाए वहाँ चुरा के तोड़ने की जरूरत क्या है? क्या कहना। तो अब ये जब वहाँ पहुँचे
बाबू साहब देखा कि ये पेड़ लगा हुआ है, इसी से सेब की डाल इधर लटक रही है। पता चला कि ये मोहब्बत शाह का बाग है। अब पहुँचे मौलाना सलमान, मोहब्बत शाह क्या हुआ, क्या खैरियत बदीजे चाचा क्या करे, वो आपकी बाग जो वहाँ लगी है ना, हम सुबह पानी भर रहे थे, हम भूखे तो एक सेब टूट के आ गया। ये साहिब बाग के पास बहुत एक गोल सेब देखा, ये तो फला चाचा की बाग है, और मेरी चाचा भाई पप्पा खाली यही रिश्ते, तो फला चाचा की बाग है। चलो उनसे कहते हैं, मानते हैं तो कीमत लेंगे तो कीमत दे देंगे, माफ़ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात। अभी उनके यहाँ दरवाजे को काम वाम करके सीधे घर जाने के बजाय उनके घर पहुँच गया। दरवाजा तक चला निकले, कहा क्या बात है, गाँव लड़का है, पहचान के तो सभी है कि फला साहब के मोहब्बत का लड़का है, अमीर हसन का लड़का है, या फला का, या कौन है। कहा बेटा बताओ क्या बात है, कैसा कहिए। क्या वो चचा सुबह पानी लगा रहे थे और आपकी बात की जो डाल लटकी है ना बाहर, उसमें से एक सेब टूट के हमारे जो नाली बनाए थे उसने गिर दिया, और वो सेब बहता रहा, हमको भूख लगी थी, हमने वो सेब खा लिया। तो वही आए हैं कि आप उसे इजाज़त दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमने बगैर आपकी इजाज़त को सेब खा लिया है, तो वो मेरे लिए जायज़ हो जाए, और आप अगर जब उसकी कीमत ले लीजिए। तो चल के आया, अब अगर वैसे आदमी कोई तोड़ लेता हो आगे बताता, तब भी आदमी का फट जाता है, भाई आया तो है बताने के लिए। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुमने खा लिया सेब, कोई बात नहीं, जाओ। एक सेबी का तो मामला था, वो टूट के गिर गया था, नानी मारा तो टूट के खा लिया। कहा अब बेचारे ये खुश हो गए कि आज चचा ने तो हमको सेब के कोई मतलब पैसा लिया, उन्होंने तो कहा इजाजत दे दी। जब ये जनाब अबूबकर साहब आगे बढ़े, तब वो चचा मियाँ ने आवाज़ दी, बेटा जरा सुनो, अल्लाह की लड़के नाम लिया, पहला सुनो बेटा, हाँ ये बंद कर, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, थोड़ा गर्मी ठीक रहेगी, आवाज़ पहुँच जाएगी। एक ग्रुप रहे मोहम्मद वाले ठीक है बेटा सुनो तो जरा कुछ हाल यहाँ भैया। अब वो पलटे कहा कि मगर एक बात है भैया, जल्दी एक तरफ बैठ जाओ भैया, बात मेहनत रायगा न करो हमारे, न चलाओ, चलो चला तो रखा दो। जब मेहनत करने के बाद माहौल तैयार हो जाता है तो फिर गर्मी सर्दी का असर खत्म हो जाता है, और उसके बाद बीच में जब डिस्टर्ब होता है तो सारा मामला फिर जराम वराम होने लगता है। अब इन्होंने कहा कि चचा ठीक है, आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप इसी उम्मीद से आए थे कि आप कुछ कहेंगे नहीं, वो मैंने खा लिया तो माफ कर दिया। ठीक है बेटा, एक सेब की बात थी, कोई बात नहीं, जाओ, तुमने खा लिया, भूख लगी थी, वो बह के आ रहा था, अरे वो आखिर बर्बाद हो ही जाता, कोई बात नहीं, चलो जाओ। अब वो चल दिया खुशी खुशी। जब ये थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने आवाज़ दी, अबूबकर जरा सुनो। अब अबूबकर जब वापस हुए तो उनका एक मामला ये है, ये बाग सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम दो भाइयों का है, और अभी बटा है नहीं कि आधा बटा हो कि वो जो पेड़ है वो हमारे हिस्से में था, वो दूसरे हिस्से में था, वो अभी बटा है नहीं। तो आधा सेब तो हमने तुमको माफ कर दिया, जो आधा खाया है, मगर आधा सेब हमारे भाई नजफ में रहते हैं, उसके मालिक वो हैं। तो अब आधा सेब अगर तुमको माफ करवाना है तो तुम नजफ चले जाओ और जाके उनसे माफी उनसे कहो, अगर वो माफ कर दे तो आधा सेब तुम्हारे लिए खाना जायज है, वरना आधे के जिम्मेदार आधा रह गया तो आधा हम तुमको यही माफ किए देते कि तुमने खाया, आधा से मैंने माफ कर दिया। अब ये बेचारे वहां से निकलेगा, ये तो और मुसीबत, कहाँ जुबेल और कहाँ नजफ। अब चले, आधा से तो खा लिया है, अब तो खा लिया ही है, अब वो अब निकल तो सकता नहीं है कि सेब वापस हो जाए। अब वो तो पूछ के और हजम हो गया, सब खत्म हो चुका है, मगर अब आधा से भी चचा ने माफ कर दिया है। इन्होंने तुरंत सामान तैयार किया, यार अगर न माफ किया, माफ कराने पहले मर गए हम तो मालूम नहीं अल्लाह के फरिश्ते मुझे किस हालत में रखे, कितना अज़ाब है। इस आधे सेब की वजह से मुझे मरने के बाद कितना झेलना पड़े।
अब ताबीरा तुरंत इन्होंने तैयारी की और नजफ के लिए रवाना हो गए। अब जब नजफ पहुंचे तो ज़ियारत करने के लिए कहा मौला की ज़ियारत क्या करने के एक बहाना है कि ज़ियारत भी हो जाएगी, मगर इन्होंने कहा पहले सेबुआ तो माफ़ करा ले अपना चल के, जब सेब माफ़ हो जाए तो मौला की ज़ियारत भी कर ले। कहा कि ठीक। अब वो पता लगाते हुए वो चले गए थे, वो बहुत बड़े अल्लामा मौलाना थे, बस की आबादी छोड़ के वो नजफ चले गए, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की, बहुत बड़े आलिम दीन बन गए। अब जब वो वहीं दर्स वर्स देते थे, वहीं रहते थे आराम से नजफ में और मदरसे में पढ़ाते थे हौजे में। जब ये वहाँ पहुँचे जनाब अबू ज़र, तो पता लगाते हुए कि हमारे गांव के फला साहब यहाँ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बताया लोगों ने कि हाँ फला साहब मोहब्बत का घर वहीं पे है, फला जगह बम्बई में। सब पहुँच गए पता लगाते हुए। अब जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें दरवाज़ा खटखटाया, निकले वो तो मौलाना साहब थे। वो जब निकल के आए तो देखा तो बताया कि चाचा हम फला साहब देश से आए। अरे गांव का नाम, जो आदमी परदेश में है, जो परदेश में रहते हैं, आप सोचिए गांव का अगर कोई मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। अब वो बहुत ज़माने के बाद गांव कोई आया तो तुम आज आदमी बदला को तो अक्सर नहीं जानते, वो बहुत ज़माने से नजर में थे। कहा हम फला के लड़के हैं, मेरा नाम अबू ज़र है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, आप फला खाना के फला के बेटे हैं। अरे बेटा बहुत अच्छा हुआ, कहाँ ज़ियारत करने आए थे? कहा हाँ आए तो ज़ियारत करने, मगर पहले आपसे एक ज़रूरत थी, इसीलिए मैं आपके यहाँ पहले आ गया। अभी यहाँ से अब आपसे मुलाकात करके फिर ज़ियारत के लिए चला जाऊँगा। कहा खैरियत? अच्छा आओ बैठो, बिठा ला। कहा मसला ये हुआ चाचा कि हम एक दिन पानी लगा रहे थे और नाली में हम खाना ने दे थी, हमको लगी थी भूख, और आपकी जो बाग वहाँ नहर किनारे पर लगी हुई है उसमें से एक सेब टूट के नाली में गिर गया। हम भूखे थे और वो सेब बहता हुआ आया और हम भूखे थे, हमने सेब खा लिया। और जब खा लिया तब मुझे होश आया कि मैंने ये तो सेब बेइजाज़त खा लिया है, इसके लिए इजाज़त लेनी चाहिए थी। तो आधा सेब तो आपके भाई ने माफ कर, जो आपके भाई के पास दिया था, तो आपके भाई ने कहा कि हम इस बाग के 2 मालिक हैं, हमारे भाई हैं, हम हैं, बाग बटी नहीं है, इसलिए उसमें कोई ये पता नहीं है कि कौन इसका पेड़ है, इसलिए आधा सेब तो उन्होंने माफ़ कर दिया। मगर आधा सेब कहा अगर मेरे भाई माफ़ करेंगे तो माफ़ होगा, वरना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो चाहे आपसे अल्लाह का वास्ता आप मुझे आधा सेब माफ़ कर दीजिए, मैं इसीलिए अजमेर से नजफ तक आ गया हूँ। जब आप इजाज़त माफ़ कर देंगे तभी मैं ज़ियारत के लिए जाऊँगा, फिर घर चला जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ऐसा है, सेब तो हम नहीं माफ़ कर सकते। मौलाना साहब जो थे उन्होंने कहा कि तो सब ठीक है बेटा, मगर तुमने बेइजाज़त वो सेब खा लिया, इसलिए हम सेब तो नहीं माफ़ कर सकते। तो आप बताइए हम इतनी दूर से आए हैं, तो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, और अगर आप न माफ़ करेंगे और मुझे मौत आ गई, बेइजाज़त मैंने आधा सेब खाया है आपके हिस्से का, आपकी बात क्या, तो अल्लाह के फरिश्ते मुझे कितना अज़ाब मालूम नहीं, अल्लाह मुझे कितना अज़ाब मज़्ज़ब करे, कितने अज़ाब में मुब्तला के, कितनी सज़ा दे। मगर एक शर्त है, अगर तुम सेब माफ़ करवाना चाहते हो तो एक शर्त है। कहा वो क्या? बताइए तो क्या वो भी शर्त क्या है? कहा मेरी बेटी से अगर शादी कर लो तो मैं तुम्हें आधा सेब माफ़ कर दूँगा। ठीक है, मैं सोचा था माफ़ करवाना है तो जहाँ मामला रिश्ते का तक मामला पहुँच गया। अब वो घर वाले तो अजमेर में पड़े हैं, हम यहाँ रिश्ता तय करने लगे। तो सोचा था अच्छा, उसने एक बात कहा कि यार अपने दिल में ख्याल किया यार दुनिया में चलो शादी कर लेते हैं, आधा सेब तो माफ़ हो ही जाएगा, अरे जहन्नम की अज़ाब से तो बच जाएंगे, दुनिया में जो कुछ होगा झेल लेंगे, दुनिया तो हमें दुनिया किसी तरह तो कट जाएगी, मगर आखिरत में अगर मामला फंस गया तो फिर वहाँ धक्का लगा के गाड़ी को ढकेलने वाला मिलेगा नहीं। यहाँ तो भूखे होंगे तो चाहे किसके दरवाजे घर चले जाएंगे, यार इस वक्त में खाना नहीं ला, रोटी जरा खा ले, और वहाँ थोड़ा मामला का गड़बड़ हो गया तो कोई किसी का पुरसान हाल होगा नहीं, हर आदमी अपने अमाल में मुब्तला होगा। वही मूली अपने पत्ते भारू है तो वो अपने अपना अमाल उठाए हुए तो समझ में ना आएगा मामला, तो दूसरे का रवादार कौन होगा। तो इन्होंने तय किया, कहा ठीक है चचा, अगर आप कह रहे हैं
इस शर्त पे माफ करेंगे तो हम शादी के लिए तैयार हैं जियो भाई, शादी के लिए तैयार हैं, आप कर दीजिए शादी, मगर सेब माफ कर दीजिए। कहा मगर पहले सुन लो पूरी बात, हमारी लड़की गूंगी है जिसके साथ शादी करना है तुमको। उन्होंने कहा एक तो शादी, दूसरे वो गूंगी लड़की, अब क्या करें? फिर सोचते रहे, सोचने के बाद कहा कि चलो खैर गूंगी सही, दुनिया में किसी तरह चंद दिन, कितने दिन, 10 साल 15 साल 20 साल गुजारना है साथ, उसके बाद में। इसीलिए नौजवानों को अक्सर मैं यूं कहता हूँ कि माशरे में अपने बच्चों की माँ तलाश करो, अपनी बीवी न तलाश करो। एक भैया मोहम्मद वाले अज़ीज़ान गिरामी, अब इन्होंने कहा चलो ठीक है गूंगी है। फिर इन्होंने वही सोचा यार गूंगी औरत के साथ जिंदगी तो किसी तरह गुजारी जा सकती है, मगर अगर मामला फंस गया बरदक में मैशर में तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा। कहा चलो अगर वो गूंगी है तो हमको तस्वीर में हम कर लेंगे। कहा गूंगी नहीं, साथ में वो अंधी भी है, वो अंधी भी है। इन्होंने कहा कि वो ये दूसरा मामला, वो गूंगी के साथ अंधी। इन्होंने फिर वही सोचा, तफसील में जाएंगे फिर उन्होंने कहा वो बहरी भी है। तो यार तो पहले बताया शादी करो, फिर कह रहे हैं वो गूंगी है, फिर कह रहे हैं वो अंधी भी है, अब कह रहे हैं बहरी है। फिर उन्होंने सोचा यार चलो ठीक है किसी तरह जिंदगी काट लेंगे, मगर वहशत के अज़ाब से तो बच जाएंगे। और ठीक है चाचा वो मुझे गूंगी बहरी अंधी सही, का वो माजूर भी है, वो पैरों से माजूर भी है, वो पैर उसकी बेकार है, चलो नहीं सकती, माजूर है बिल्कुल। यार ये तो बड़ी मुसीबत है। अब वो विकलांग को माजूर और लड़की, अब उसके एक शादी, दूसरे उसके एक एक बता रहे हैं मुझे। उन्होंने सोचा यार वो माजूर सही, वो अंधी सही, वो लंगड़ी सही, वो बहरी सही, मगर जिंदगी कितने दिन दुनिया में गुजारना है, कोई मौत का कोई ठिकाना नहीं है। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, इतने दिन किसी तरह हम झेल लेंगे उसी को, चलो ठीक है, मगर महशर में अगर फंस गए तो फिर वहाँ छुटकारा मिलने वाला है नहीं। तो ये 10 20 40 50 साल का ठीक है मामला, किसी तरह अपनी जिंदगी काट लेंगे, चलो ऐसे ही सही, मगर आखिरत के अज़ाब से तो हम बच जाएंगे। उन्होंने कहा चाचा ठीक है, आपकी जो जैसी भी लड़की है, अब आप कुछ कहिए ना, मुझे हर हालत में मंजूर है, आप अब्द कर दीजिए और आधा सेम माफ कर दीजिए। झूठ पड़े मोहम्मद वाले। अब जब इन्होंने देख, अब अब्द हो गया, फिर उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने अब्द कर दिया। जब अब्द कर दिया, अब जब ये बीबी के कमरे में दाखिल हुए, अबूजर साहब जनाब मुक़द्दस मेरे के वालिद साहब, जब ये अपनी बीबी के कमरे में दाखिल हुए, वैसे उसने सलाम किया। जब सलाम किया तब ये मुड़ के चलने लगे, शायद हम गलत कमरे में आ गए हैं, क्योंकि मामला हुआ था लड़की गूंगी भी है और बहरी भी है और अंधी भी है, माजूर भी है। इन्होंने समझा इसने मुझे देखा है और सलाम किया है, तो ये देख भी रही है, बोल भी रही है, इसलिए हम गलत कमरे में आ गए। तो उसने आवाज़ किया आप गलत जगह नहीं है, वापस कमरे में आ जाइए। तब ये दिल मजबूत करके बेचारे कमरे में दाखिल हुए, कहा बैठ जाइए। अब इन्होंने जवाब सलाम दिया। अब जब देखा तो मिस्र दूर से एक लड़की उनके सामने बैठी है, बेपनाह खूबसूरत, तो जैसा हुस्न होना चाहिए वैसी खूबसूरत एक लड़की सामने बैठी हुई। अब ये चकराए बेचारे, ये मामला क्या है? वो कह रहे हैं बदसूरत थी, अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, माजूर थी, इसके हाथ भी ठीक है, पैर भी ठीक है, देख भी रही है, मेरी सुन भी रही है, मुझसे बोल भी रही है,
और चेहरा इतना हसीन है कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं था ऐसी लड़की, मतलब देखा ही नहीं ऐसी सूरत, इतनी खूबसूरत बीवी मेरी। कहा मेरे बाबा ने तुमसे जो बताया तुम उसी पे ताजबीर कर रहे हो ना। मेरे बाबा ने तुमसे कहा कि मेरी लड़की गूंगी है, तो सुनो मैं गूंगी इसलिए हूँ कि मैंने आज तक किसी की गीबत नहीं की है। मैंने आज तक के किसी की गीबत नहीं की है, और बहरी इसलिए हूँ कि किसी की गीबत सुनी नहीं है। ये जरूर पढ़े मोहम्मद वाले बहरी इसलिए हूँ, मेरे बाबा ने कहा कि मैंने किसी की गीबत सुनी नहीं है। और बस सूरज जो मेरे बाप ने कहा था, वो अंधी कहा था, तो न मैंने किसी नामहरम को देखा है आज तक के, न किसी नामहरम ने मुझे देखा है। और जब बताया था कि माजूर है, मैंने अपने बाबा की इजाजत के बगैर एक कदम भी आज तक घर से बाहर नहीं निकाला है। इसलिए मेरे बाप ने कहा था मेरी बेटी माजूर है। बगैर बाप की इजाजत के मैंने आज तक एक कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। जो मेरे बाप ने तुमसे कहा है वो सही कहा है, मगर हकीकत ये है, वे सुन लो। और तुम मेरे शरीके हयात हो। मेरी ये कैफियत देखने के बाद, हालात कि अल्लाह ने मुझे तालीम हासिल की और मेरे किरदार को, मेरी इस्मत और इफ़्फ़त को देखने के बाद मेरे बाप ने मेरे रिश्ता करना चाहा, मगर मेरा हम सबको कोई आज तक मिला ही नहीं। जब मैं तमाम ढूंढा, कोई लड़का इस लायक नहीं मिला मेरे बाप को जो मेरे हमारे साथ उस्ताद हो सके। तो मेरे बाप ने मायूस होकर जाके रौज़ा इमाम अमीरुल मोमिनीन पे अर्ज़ी थी कि मौला जब बेटी ऐसी बाइस्मत दी है तो इसी तरह इसके रिश्ते का इंतजाम भी आप ही कर दीजिए। और जब तुम आधा सेब माफ कराने के लिए आए, तब मेरे बाप को समझ में आया कि मेरी दुआ कबूल हो गई है। जो लड़का इतना साहिबे किरदार है कि आधा सेब माफ कराने के लिए आजुबेल से नजाफ आ सकता है, वो कितना साहिबे किरदार होगा। वो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब माँ बाप का किरदार इतना बुलंद होता है, तब आगोश में अल्लाह मुकद्दस बेली जैसी औलाद अता करता है। बस तफसीर में जाने का वक्त खत्म हो गया। बाकी जब उलमा को हम आज तक न समझ पाए, तो अहले बैत को क्या समझ पाएंगे। पूरी दुनिया हमारे उलमा को न समझ पाए। हसन रसूलुल्लाह, आयतुल्लाह सीस्तानी, सैयद हसन रसूलुल्लाह, आज भी उनकी औलाद मौजूद है। जब औलाद समझ में न आई तो इमाम को दुनिया क्या समझेगी। अज़ीज़ान गिरामी, और जिस दीन के ऊपर आज हमले हो रहे हैं, सीना से पर अगर कोई है तो अली की औलाद, दूसरा और कोई नहीं है। फिलिस्तीन के मजलूम मारे जा रहे हैं। लिल्लाह कम से कम इतना ख्याल रखिए कि उन मजलूमों को, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम किसी का मजहब मसलक नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कौन जालिम है कौन मजलूम है। इमाम ने फरमाया हमेशा मजलूम की हिमायत करना, जालिम की मुखालफत करना। इसलिए जालिम की मुखालफत करने के लिए कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इजराइल के पैदा हुई चीज़ों, बनाई हुई चीज़ों का बाइकाट तो कर ही सकते हैं। और मुहर्रम में अज़ीज़ान गिरामी अगर हम कर दें तो मालूम नहीं कितने बिलियनों मिलियनों बिलियनों डॉलर का उसका नुकसान हो जाएगा एक मुहर्रम में। अज़ीज़ान गिरामी, किसी दीन को बचाने के लिए आज फिलिस्तीन में मजलूम मारे जा रहे हैं। कौन है बोलने वाला सिवाय औलाद अली के? पूरी दुनिया में अगर एहतजाज कर रहे हैं तो गैर कौमें कर रहे हैं, जश्किया खुल के आ रहे हैं सामने। जो उनके हम मजहब है वो पेट भी नहीं निकल के आ रहे हैं। जो बड़े बड़े अमीरजादे हैं सब इसराइल के गोद में बैठे हुए हैं, इस तरह जैसे उस वक्त यजीद के गोद में बड़े बड़े बैठे हुए। मजलूम करबला के साथ की मस्जिद में हल कर रहा था। इस इस्लाम को बचाने के लिए ज़ैनब ने अपनी दोनों लालों को कुर्बान कर दिया। और जब मजलूम करबला अपने भांजों की मैयत लेके आए तो ज़ैनब को आवाज़ दी, और जब ज़ैनब आई तो लाशों के दरमियान जगह बनाया। अब समझ लीजिए किस बीवी का नाम ज़ैनब अली की बेटी, जिसको शेर दिल खातून कहा गया है, जिसको हुसैन अपनी शहादत की नश्र करने के लिए मदीने से करबला लेके आए थे। यही मेरी बहन ज़ैनब है, मेरा बेटा सैयद सज्जाद है।
जो मेरी मजलूमियत को रहती दुनिया तक के आम करके रखेंगे। जिस शाम करबला से कूफा, कूफा से शाम तक वो बीवी, अब समझ लीजिए कितना बड़ा दिल था ज़ैनब का कि एक तरफ कौन की नाथ है, मैयत है, एक तरफ मोहब्बत की मैयत है, दरमियान में जगह बना के सजदे शुक्र अदा किया और कहा पालने वाले तो ज़ैनब के हकीर से नजराने को कबूल फरमा ले। मगर ज़ैनब उठी उसके बाद चली गई। अली अकबर की शहादत की खबर सुन के मैं खैमे से निकल आने वाली ज़ैनब अपने बेटों के लाश पे शुक्र का सजदा किया, गिरजा न किया। अली अकबर की मैयत पर तड़प के रोने वाली ज़ैनब अपने बेटों का मातम न किया। अपना करबला से कूफे चला गया, कूफे से शाम में 1 साल तक कैद खाने में ज़ैनब लाश हुसैन तक गई है। भैया अब्बास को आवाज दी है, मगर अपने बेटों की लाश तक कोई रवायत नहीं दिखती कि ज़ैनब करबला में गई हो। मगर जब काफिला करबला के 1 साल कैद होने के बाद रिहा हुआ और सरहा सौदा आने लगे, तो शाम की औरतें जब आई तो देखा कि एक सर एक बीवी लिए बैठी है, 2 नन्हे खूबसूरत से सर सामने रखे हुए हैं, उनका लेने वाला कोई नहीं था। जब बीवियों ने जनाब फिजा से पूछा चुपके से कि बीवी ये बताइए क्या इस काफिले में इन बच्चों की माँ नहीं है? ये सर रखे हुए हैं। अब समझिए ज़ैनब से जब ये जुमले सुने होंगे तो एक माँ के दिल का क्या गुजरी होगी। सानिया ज़हरा ने जुमले सुने, पलट के शाम की औरतों को देखा, कहा शाम की औरतों, अरे इनकी रोने वाली माँ मैं ज़ैनब मौजूद हूँ, मगर क्या करूँ? मैं अपने भैया हुसैन पे गिरजा करूँ या अपने बेटों का मातम करूँ? साहबाने औलाद अक्सर है इसमें, दिल खोल के गिरिया कर लीजिए। बस आखिरी रवायत खत्म हुआ। काफिला करबला से शाम से करबला से होते हुए मदीने पहुंच गया। और जब मदीने कई दिन बीत गए, एक दिन जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर से मुलाकात जनाब सैयद सज्जाद की हुई। कहा आका शहजादी से कहिए जरा घर वाले की आए, उनसे कुछ गुफ्तगू करनी है, कुछ हालात मालूम करने हैं। जनाब सैयद सज्जाद आए, काफी अम्मा सुबह अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने आपको याद किया है, कई दिन हो गए, आप जाके आप उनसे मुलाकात कर लीजिए, वो बहुत मुश्ताक है आपकी मुलाकात के लिए। अब अगर जिस वक्त जनाब सानिया ज़हरा अपने भाई के घर से निकली और अपने घर की तरफ चली, तो उस वक्त जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर घर पे नहीं थे, किसी काम से गए हुए थे। जनाब जब सानिया ज़हरा अपने घर दाखिल हुई, अब माँ का दिल था कब तक ज़ैनब बर्दाश्त करती। जब सामने छोटे छोटे बिस्तर, छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए, तड़प के करबला का रुख किया, अरे मेरे लाल होने मोहम्मद मारिया हो के मदीने आ गई, ये मुसल्ले खाली है, बिस्तर खाली है, अरे रोनो मोहम्मद तुम करबला में मौत की आगोश में सो गए, मैं तेरा कब्र भर के मातम नहीं कर सकती। इल्ला है व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन।